personal experience. So we would like it to be interactive, but during the session when Captain Dr. Sunaina is talking, we would like you to put your questions or comments on the chat. And towards the end, we will have a Q&A session where you can unmute yourself and ask questions. Also very important, during the Q&A, we will share a short, very, very short feedback form, just a couple of questions, so that we know how these sessions are going for you, and we can bring more relevant, more practical sessions like this for all of you. Now on to the speaker of the day, Captain Dr. Sunaina Singh. Thank you so much for joining us. It's such an honor to have you. Thank you, Anu. Pleasure is all mine. You all are doing such a wonderful job. I could not say no to it. And whatever little I know, whatever little, I would love to share it with each one of us because it's very important these days. I think सबसे burning issue और कुछ भी बोले फिजिकल हेल्थ वी ऑल आर अवेयर हो जैसे ही सर दर्द होता है आई थिंक एवरीबडी गोज टू इमीडिएटली डिस्प्रिन लेनी है और अपना इलाज कर लेना है बट व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ आई थिंक मोर एंड more awareness is required. And when I read about your this foundation, the kind of work you are doing, I'm so happy to know that I will be associated with you all. So let's see in next 40-45 minutes let's make at least this space for a time being a stress-free space. We all can smile for a bit. So let's do it. Wonderful. Thank you so much. And thank you for appreciating our work. And I think our participants should also know about the wonderful work that you are doing and have done. I think you have 20 years of experience in admin, sports psychology, management, education, teaching, training. I mean, I was looking at your profile. I think we'll need the entire 45 minutes just to go over that. You've done such wonderful work. She does have a passion for teaching, and you can see just the way you speak as well. It's so engaging and so positive. You do conduct educational training and workshop for students. I think during COVID, you had conducted over 100 webinars for students. That's just mind-blowing. Thank you so much for doing that for the students during that time. So she served with the Indian Army as an intelligence corps officer. She's also worked with Delhi University and IILM Management College. She graduated in psychology, did her master's in psychology and her PhD in psychology. So we have just the right person today to speak about mental health. Your areas of interest are sports psychology, which is a very interesting field these days. Actually, it's picking up quite a lot. Emotional intelligence, career development, stress management, employability, you name it. She has papers presented and many papers published and presented, even written a book. She is an outstanding sportswoman. So it's not just all talk, it's also action. She has represented the state, the university at national level and at India inter-university level for handball as well. She has started an awareness program, Mission Join Indian Army, for defense aspirants, where she's guiding and motivating students to join the Indian Army. This is so, so beautiful, such great work. Thank you so much for being here with us today. I think there's so much more that I can talk about, but I would really like to hand it over to you very soon. And, we all speak about mental health so much, and you have so much experience in all of this. If you ask someone, these days what mental health means, we all get very different answers, very different perspectives. So let's start from there, if you don't mind. What is really mental health according to you, and why should it be such a big deal? Yeah. So I just Over want to you. so I just want to tell to each one of us, I'll be bilingual, I hope so. I hope everybody is fine with that. Anybody who doesn't understand Hindi also, because I can see many of my students also here, so I'll be bilingual. Fine, चलिए फिर ठीक है. किसी को कोई भी problem होती है, just do let me know. ठीक है? Sure. But yeah, so we all know challenges हम सबकी life का part है. Each one of us, be as a student, as a parent, as a working professional, we all often face challenges in our day-to-day life, be it any. कई बार रिलेशनशिप्स में होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, पीयर प्रेशर होता है. आजकल तो सोशल मीडिया ने एक फोमो करके क्रिएट कर दिया है. हम सबको लगता है वी आर नॉट लिविंग द बेस्ट ऑफ आवर लाइफ एंड एवरी सेकंड पर्सन इज लिविंग द अनदर बेस्ट ऑफ देयर लाइफ. एंड आई थिंक द लिस्ट गोज ऑन. Before starting it,
a simple reminder I want to tell to each one of you that these challenges do not mean that the world is ending, firstly. In fact, most of our challenges are temporary. और थोड़ी सी मेहनत करने पे and a little bit of work on it, we all can overcome our difficulties. So because of these difficulties, because of this world changing so fast, in today's time mental health has become a very a rising topic that everybody has started talking about it. And और सबसे ज्यादा I think after कोविड से पहले था, बट कॉर्पोरेट हाउसेस के अंदर बड़ी बड़ी जगह पे बहुत बड़े बड़े सेशंस होते थे जहां पे लोग मेंटल हेल्थ की बात करते थे. बट आज जब कोविड आया, हम्बल रिक्वेस्ट एटलीस्ट कृत, अमरजीत, रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास. मुझे In लगेगा fact, कि I मैं would इंसानों love से बात कर रही हूँ many यार. people, everyone to या switch या या on their videos, please. उनको मैं Thank बोल you. सकती हूँ आई थिंक ना. हाँ, रिक्वेस्ट यू ऑल तुषार, या रिक्वेस्ट यू ऑल Thank टू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास. फाइन. मुझे लगेगा कि मैं इंसानों से बात कर रही हूँ यार, वैसे ही कंप्यूटरों ने आधी जिंदगी ले ली है हमारी. ठीक है, चलिए फिर. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस आफ्टर कोविड, इवन स्टेइंग एट होम, इवन स्टेइंग विद आवर लव्ड वंस, वी कुड फील दैट देयर इज समथिंग विच, चाहे आपको बुखार नहीं आया, चाहे कोविड नहीं आया, बट समथिंग वाज मिसिंग एंड वी ऑल कुड रियलाइज इट वाज आवर मेंटल हेल्थ. एंड बिकॉज वी ऑल नो दिस वर्ल्ड इज चेंजिंग एट सच अ फास्ट स्पीड, वन वे कम्युनिकेशन में हम सब आ गए हैं. मोबाइल हैज टेकन ओवर सो मेनी एक इम्पॉर्टेंट चंक ऑफ आवर डे, 4 to 5 hours एवरेज. आप सोच के देखिए. सो आवर ब्रेन आर बेगिंग फॉर ब्रीदर. हम सब कुछ काम करे जा रहे हैं. पीपल आर गोइंग टू जिम, पीपल आर वर्किंग ऑन इट, फिजिकल हेल्थ के लिए काम करे जा रहे हैं, बट स्टिल एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द हेयर. सो फॉर मी, इफ यू आस्क मी, more than physical health, mental health is much much more important. हमें सबको पता है कि अगर बाजू टूट जाती है तो उसको हमें कास्ट लगा के 21 डेज का, 4 वीक्स का हमें रेस्ट देना पड़ता है. व्हाट अबाउट आवर ब्रेन्स? डू वी नो हाउ टू सपोर्ट दैट पार्ट ऑफ द बॉडी जो पूरे का पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है? जस्ट थिंक ओवर इट. So each one of us, that is why I think we are conducting these webinars. We all know, each one of should, जैसे each one of you knows that cast लगाना पड़ता है, बाजू टूटती है, एक्सरे कराना पड़ता है. each one of you know, फीवर होगे तो तुम क्रॉसिन लोगे, पैरासीटामोल लोगे, डिस्प्रिन लोगे. So basics of mental health issue, ये बहुत जरूरी है सीखना, चाहे आप किसी भी जिंदगी के पार्ट में हैं. तो आज अगर आप मेरे से पूछे, पूरे वेबिनार इसके अंदर हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे. और मोस्ट ऑफ अस नोज आल्सो बेसिक्स, बट आर वी प्रैक्टिसिंग इट? That's another issue. So we will be talking about that also. अगर mental health बोलो, अगर मैं psychology के term से बताऊं, बड़े खूबसूरती से बोला जाता है emotional, psychological and social well-being. अब emotional well-being का मतलब क्या है? Emotions, your feeling, what you feel like happiness, contentment, peace, whether you are able to manage your those negative emotions or not. And negative emotion ऐसा नहीं है आएंगे नहीं, obviously they are also a part of emotion. The way पॉजिटिव इमोशंस आर पार्ट ऑफ योर, खुश होना, तो दुखी होना भी एक नेचुरल रिएक्शन है किसी, वो जाएंगे नहीं कहीं. उनको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. सो इमोशनल वेलबींग के अंदर, लाइक when you talk about positive emotion, happiness, contentment, peace, realizing and learning to manage your negative emotions like गुस्सा आना, sadness, anxiety, we all should know how to manage them is another important thing. Second, when I talk about psychological well-being, उसमें होता है having your sense of purpose in life. It's very important. आप जिंदगी में किसी बड़े ओहदे पे चले जाइए, बट अगर वो एक सेंस ऑफ पर्पस नहीं है, अगर आपको अपनी लाइफ मीनिंगफुल नहीं लग रही है, आपको हमेशा इनकॉम्पिटेंट फील होता है. So feeling of that you are capable of doing something, you are competent of doing that task, and then it is going to boost our self esteem. So basically जो normal day to day life के stressors होते हैं, if you are competent in doing your task, if you are capable of doing something, if you are able to handle all your relationship to cope up with your normal life stressor,
comes under mental health only. Then third, again very important, is your social well-being. हम सबको पता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये चीजें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं. सो समाज हमसे है, तो समाज के बिना नहीं चलेगी ये दुनिया. आप कहीं पहुंच जाइए, इफ देर इज नॉट अ सिंगल पर्सन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू whom you can hug tightly and share everything with them, कुछ मजा नहीं आता है लाइफ के अंदर. एंड वी ऑल नो दैट, बट वी ऑल आर रनिंग इनटू समथिंग, डोंट नो कि हम जा कहाँ रहे हैं. सो सोशल वेलबींग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ. जो लोग लोनली होते हैं, जो लोग अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर पाते हैं, और गुड रिलेशनशिप्स आर द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ. लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है. छोटी सी उम्र से आजकल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात होने लग गई है. छोटी सी उम्र से बच्चों को ट्रेडिंग सिखाई जा रही है, पैसा कमाना घर बैठ के बिना कुछ हिले. आप सोच के देखिए, एंड नोबडी इज टीचिंग देम टू इन्वेस्ट इन योर रिलेशनशिप्स. दे आर नॉट एबल टू इंटरैक्ट सोशली. आज के बच्चे को अगर हम नमस्ते करने के लिए किसी को बोलते हैं, उनको दिल में धक धक शुरू हो जाती है. That feeling of belongingness, that support within the community, the connect with you which you have with your roots is missing. So ये तीन चीजें मुझे लगता है मेंटल हेल्थ का बहुत बहुत बड़ा पार्ट है. और गुड मेंटल हेल्थ का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, बिकॉज व्हेन इट यूज्ड टू कम टू हमारा जो पुराने वाला टाइम था ना, हम कहाँ बात करते थे, मेंटल वर्ड आ गया तो साइकोलॉजी के स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, यही सारी चीजों की बात होती है. नो, absence of mental disorder does not mean that you have a good mental health. It more important is you have an ability to cope up with all your life challenges, to work effectively wherever you are working, making अपने लिए नेक्स्ट चैलेंज सेट करके उसको करना, टू कंट्रीब्यूट समथिंग बैक टू द कम्युनिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जो पुअर मेंटल हेल्थ होती है, देखिए मेंटल डिसऑर्डर्स तो आएंगे ही आएंगे पुअर मेंटल हेल्थ से. देयर इज गोइंग टू बी एंजाइटी, एंजाइटी विल टर्न इनटू डिप्रेशन, डिप्रेशन विल टेक अनदर रोल, बाइपोलर्स हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती है. तभी आज के टाइम में मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस को प्रमोट करना बहुत जरूरी है. और दैट इज, if we make people more aware of it, that is the only way they can work, they can put in efforts in maintaining their mental health. They will, कई बार खुद से नहीं होता है. We need support from the people, and that is why Pukar is there as a support system. That is why I am there as a teacher. I am there, whatever little I know. कई बार मुझे ऐसे लगता है कुछ आने की जरूरत ही नहीं होती है, कई बार सुनने से ही बहुत कुछ हो जाता है ना. You just listen to someone. There are point when people don't have. I was mentioning it to one of my friend because मैं एक बात बताने की, when I was in my hostel ना, जब मैं हमारे टाइम में होता था, फोन होते ही नहीं थे, है ना. जब फोन नहीं होंगे तो आप क्या करते थे, जब रूम में गए, मेरा मूड ठीक नहीं, आई हैड अ बैड डे, मेरी टीचर ने मुझे डांट लगा दी डिपार्टमेंट के अंदर, आज कोई काम सबमिट नहीं हुआ, पूरे दिन की ऐसी की तैसी हुई है. और व्हेन यू रीच इन द इवनिंग टू योर हॉस्टल, आपका चेहरा देख के आपके रूममेट को पता चल जाता था. And they will keep poking you till the time you don't tell them actually what happened. First time you will tell, Sunana, what happened? Nothing, yaar. But आज के time में when you will enter, the roommate is already having his phone. Nobody pay attention to the emotion of other people, and that is why more support system is there. Earlier it was there in the society, it was there, people were not busy with their life. There were time when which actually we used to invest on our friendship, on our relationship, which is missing today. So ये बहुत important चीज है. So I think all about mental health, whatever little I knew. So this is a beautiful umbrella that you put over here so nicely. I think the one key line that I really loved about what you said is absence of disorder does not mean that you have a good mental health. That is one. And the other point, which is so beautiful and it usually gets misinterpreted very often, is that good mental health मतलब हमेशा खुश रहना. इसका ये मतलब नहीं है. इसका ये मतलब है कि you're able to manage the ups and downs. So beautifully put. Thank you so much. So now that we know what it is, and you've nicely broken it into emotional, social well-being, and psychological, you've broken it so well. How do we address these three parts to have good mental health? What are some of the things we can do? Yeah. So let me start with first is mindset, which is very, very important, because everything starts from here. Everything starts from our thought.
सुबह उठो, यू स्टार्ट विद अ पॉजिटिव थॉट, एक अच्छा ख्याल है, यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड, है ना? दिल में अच्छा होता है, आपकी एनर्जी, आपका सब कुछ, द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, उस दिन ऐसे लगता है दुनिया तो जीती जा सकती है, फाइन। सो व्हेन यू think good, you feel good. The moment you feel good, we have all the energy in our life to take actions, to do things good. आप समझ रहे हो, हम अच्छा काम करते हैं because we have energy of doing that. And if you're putting some efforts and taking good actions, results भी अच्छे आते हैं, तो life हमें ठीक ठाक लगने लग जाती है. We are able to manage things. Problem starts again from here. When you don't feel, ये तो मेरे से नहीं होगा, सभी लोग बुरे हैं, सारा ऐसे ही करते हैं, सब ऐसे, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग नेगेटिव, द मोमेंट यू विल स्टार्ट फीलिंग लो. कई बार आपको पता भी नहीं होता है, यू डोंट हैव एनर्जी टू इवन टू गेट अप फ्रॉम द बेड. आप पूरा दिन बिंजिंग करते रहोगे, नेटफ्लिक्स की क्यू को चेक करते रहोगे, और इवन यू आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन कि मुझे आज प्रोग्राम कौन सा देखना है. डिसीजन मेकिंग इतनी लो हो जाती है बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग गुड एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. आपका फील गुड नहीं है, एक्शन क्या लोगे? कुछ भी नहीं, बिकॉज वी डोंट हैव एनी एनर्जी टू टेक एक्शंस. एक्शंस अच्छे नहीं लगते, चाहे रिश्ते में हो, चाहे काम में हो, चाहे हर रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर हो. अगेन व्हाट हैपन, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, लोगों से लड़ाइयां होनी शुरू हो जाती है, एवरीथिंग स्टार्ट मेकिंग दिस दिस दिस, और अगेन वो लूप बन जाता है, और अगेन मेरे माइंड को वो सिग्नल देता है वो रिजल्ट कि देखा, मैंने कहा था ना मेरे से नहीं होगा. सो बिल्डिंग द राइट माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पैदा होते ही नहीं आता है. आई टोटली अंडरस्टैंड दैट वी ऑल लिव इन अ डिफरेंट एनवायरमेंट. सो मैं सबको बोलती हूँ, स्कूल्स के अंदर जैसे साइंस पढ़ाया जाता है, मैथ्स पढ़ाया जाता है, सो मेनी थिंग, आई थिंक टुडे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच एवरीवन हाउ टू बिल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव माइंडसेट. इट इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग. आप समझिए इसको. Harvard has done a study which says that 15%, only 15% of a time people get a job and success in their life because of the facts and figures they know. और हम अपनी पूरी जिंदगी जो हम कॉलेज में रट्टे लगाते हैं, जो स्कूल के अंदर रट्टे लगाते हैं, ऑल द टाइम स्कोरिंग गुड मार्क्स इन 10th 12th graduations, going to Harvard, doing so many things, that's what it is. Only 15% of time. What is rest is 85%. It's all your right attitude. So the most beautiful word in English dictionary is attitude only. Let me tell to each one of you, if you really want to change your life, the only thing you need to work is on एटीट्यूड. लाइफ अपने आप सही लाइन के ऊपर आ जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है. सो बिल्डिंग दैट राइट माइंडसेट फॉर मी इज building your positive attitude, which is very very important. And we all know that positivity is contagious. आप सब मानेंगे, एक पॉजिटिव बंदा है, उसकी लाइफ के अंदर all people around them, because what you give you get back. आप सोच के देखिए, आप किसी को कोई भी चीज देंगे, you will get back the same thing only. You give a smile to someone, अगर आप 10 लोगों को स्माइल देंगे तो 10 में से, चलो ज्यादा नहीं, 5 या 6 जरूर स्माइल बैक देंगे आपको, ठीक है? आप किसी को एटीट्यूड देके देखिए, 110% श्योर 10 में से 9 लोग आपको डबल द करके वो एटीट्यूड वापस करेंगे. फाइन, इट इज द फैक्ट. सो व्हाई नॉट टू गिव पॉजिटिविटी? और दूसरों के लिए नहीं यार, खुद की लाइफ में कितना सुकून हो जाता है. आई नो सो मेनी नेगेटिव पीपल, they are not harming themselves, they harm people around, because negative attitude is also contagious. आपके चारों तरफ लोग दुखी हो जाते हैं, they are not able to handle it. So it is very very important. Building the right attitude is very important. And again I am telling you, this world is your mirror. आप जैसे हो, आपको वैसा ही दिखता है. Whatever you are from inside, you will start seeing this world in the same manner. So why not to work on our inner self? Most of our energy are getting wasted. सोचना, आज हमें कपड़े क्या पहनने हैं, आज हमें दिखना कैसे है, कौन सा ब्रांड आएगा, क्या चीज लेंगे. अगर उसका 20% भी अगर हम अंदर पे लगा लेना कि हम कितने काइंड है दूसरे के लिए, हम कितनी मोहब्बत किसी और को दे सकते हैं, यू नो, दीज आर कंपैशन, काइंडनेस. थोड़ा सा जस्ट वर्क ऑन योर इनसाइड वैल्यूज, जो आपको डगमगाने नहीं दे रही है. जस्ट वर्क ऑन योर इनर रूट्स, जो आपको हिलने नहीं दे रहा है. देखना, लाइफ अपने आप आसान लगने लग जाती है, बिकॉज लाइफ इज व्हाट वी मेक इट. आप सोचिए, इफ द कंप्लीट योर, you know, your energy flows where your focus goes. If our focus is going on all the negative things in our life,
तो ऑटोमेटिकली हमें मिलेगा भी वही वापस। समझिए, तो आई ऑलवेज टेल इट टू ईच वन ऑफ यू, यू नो, कि देर आर ना 3 cancers ऑफ लाइफ। फर्स्ट इज क्रिटिसिज्म, सेकंड इज कंपैरिजन, थर्ड इज कंप्लेनिंग। हम पूरी जिंदगी, पूरा दिन शायद इसी में तो नहीं निकाल रहे और इसमें परफेक्ट होते चले जा रहे हैं। जो चीज प्रैक्टिस करेंगे उसी में परफेक्ट होंगे। अगर यहाँ पे बच्चे हैं, जरा पबजी खेल के देखो, थोड़ी सी देर प्रैक्टिस करते हो और एकदम परफेक्ट हो जाते हो। क्रश कैंडी एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग, यू गेट सो मच, यू नो, 2 मिनट में डिक्शन हो, बिकॉज आवर ब्रेन लव पैटर्न्स। Similarly, if you will start consciously practicing on building positive attitude, I'm sure you are going to build and going to perfect in that too. बेशर्ते कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब प्रैक्टिस होती कैसे है? बहुत ही छोटी सी चीज है। just ask yourself, first and the foremost important thing is we need to change our focus. आप सोचिए आपका फोकस कहाँ जा रहा है? Because of the conditioning of the society, most of the time our focus goes on the things which we don't have, or the focus goes on the thing which is wrong in the person, which is wrong at the place. एक छोटा एग्जांपल देके देखती हूँ। आज के टाइम में ना, वेडिंग्स के बाद ना फैमिली गैदरिंग्स की बातें सुना करो। कोई भी फैमिली गैदरिंग आप गई, एक साथ शादी अटेंड करके आप गाड़ी में बैठे वापस आए, सबसे पहली चीज, हाय खाने में तो तेल बहुत ज्यादा था, देखा था कितनी भीड़ हो रखी थी, आइसक्रीम तो पिघल गई थी, ओह देयर वर ओनली 4 डिशेस इन द मेन कोर्स। इमेजिन, पूरी शादी का हमारा फोकस कहाँ जा रहा है? जो चीज मिसिंग थी, क्या उसमें कुछ भी अच्छा नहीं था? जस्ट थिंक ओवर इट। ऐसा कोई माँ बाप है जो अपना दिल और जान ना लगाता अपने बच्चे की शादी के ऊपर? उस नेगेटिविटी से हमें क्या पॉजिटिविटी? कुछ नहीं। उसी जगह अगर आप एक बार जाके उसके माँ बाप को, आंटी आपका बच्चा बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अरेंजमेंट अच्छा किया, आप उस बंदे के चेहरे पे खुशी देखना और उस खुशी का इंपैक्ट आप अपने ऊपर देखना। इट इज नॉट वन वे, इट इज बोथ वेज। द वे यू आर गिविंग इट टू अदर्स, यू विल गेट बैक द सेम थिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस जा कहाँ रहा है इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नहीं है हम सबको पता है। अब क्या नहीं है उसके ऊपर फोकस जाएगा। कोई मेरे से पूछता है व्हाट यू थिंक, मैं कहा जब भी मेरा दिमाग इधर उधर चलता है मैं बैठ के कॉपी पे लिखना शुरू कर देती हूँ कि व्हाट ऑल आई हैव। अगर आप हिंदुस्तान के अंदर अभी मेरी बात सुन पा रहे हो, हम बहुत अच्छी जगह पे हैं। वी आर ब्लेस्ड विथ सो मेनी थिंग। तो फोकस वहां लेके जाइए। बोला जाता है ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो खुशियां ढूंढने से शायद मिल ही जाए। तो ढूंढने की कोशिश क्या कर रहे हैं, जरा सोच के देखिए। आर वी लुकिंग फॉर इंडिफरेंसेस? आर वी लुकिंग फॉर फाइट? आर वी लुकिंग फॉर व्हाट इज रॉन्ग इन दैट पर्सन एवरी टाइम वी मीट देम? What are you looking? Whatever you are looking for, you are finding that. And I'm sure if you are going to look for friendships, you are going to look for love, if you are going to look for good thing, कुछ तो अच्छा होगा, कभी तो आपका दोस्त था, तो यू विल गेट। तो इमीडिएटली, और ये ऐसे नहीं आएगा, इट इज अ स्किल विच नीड्स टू बी लर्नड। जैसे आप बास्केटबॉल खेलना सीखते हो, ड्राइविंग सीखते हो, हर चीज सीखते हो, इसी तरह पॉजिटिव एटीट्यूड, बिल्डिंग द राइट माइंडसेट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज अ स्किल विच नीड्स टू बी लर्न, एंड मोर इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल हु फाइंड themselves getting stuck in that negative loop. आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी उस लूप से बाहर निकलने के लिए। ऐसा नहीं है कि निकल नहीं सकते, निकल जरूर सकते हैं, बशर्ते कि हम कितनी कंसिस्टेंसी से, किस तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। दैट इज व्हाट आई रियली वांट टू tell to each one of you. So building the right mindset is also very very important. Building the positive attitude is also very very important, and this is how first thing is, पहले और एक कोई भी काम करने से पहले ना, वी रियली नीड टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यार इट्स हाई टाइम। हर चीज के लिए हम दुनिया को थोड़ी ना ब्लेम कर सकते हैं। कुछ और नहीं बचा तो चलो भाई सरकार को कर दो, सरकार नहीं काम आई तो चलो भगवान को कर दो, पेरेंट्स फ्रेंड्स को तो आपने ले ही लिया है, हमारा हक समझ रखा है हमने उन लोगों के ऊपर, तो ना देन वी स्टार्ट। कैसे हो सकता है? कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है। द ओनली थिंग विच इज इन कंट्रोल इज अस। सिचुएशन कैन नॉट बी इन आवर कंट्रोल। सिचुएशन कुछ भी होगी, हमारे कंट्रोल में क्या है, उन सिचुएशंस के अंदर हम किस तरीके से खुद को रिएक्ट करते हैं इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, सो दैट्स ऑल। चलिए,
I was thinking when you were talking कि अच्छा this is sounding so good कि right attitude and right mindset ये कैसे करें, but when you were speaking I was getting goosebumps, I was getting so energized. I think ये रोज ये सुनने से ही हो जाएगा. But so beautifully said, consistency and effort, because we are not naturally meant to be in this mindset. That is the key, right? We have to be aware that we are not naturally born to be positive, right? We are negativity bias. It's the basis of our living, but it is something that can be done with effort. That's the I key. really want to add on this. Sometimes there are few people who are blessed. I Yeah, call it myself blessed. ऐसा नहीं है. When I look at my family around, और शायद हमने मेहनत की है. Some people are born and brought up in a good environment right. all this time, but there must be few who have faced a lot of challenges during their childhood, and I am sure it is not easy for you. And if it is not easy for you, the only thing I want to tell, it is more important for you to put more efforts than the other person, because we can't get stuck. हम नहीं रह सकते यहाँ पे. हमने खुद देख लिया है कि इसमें रहने का किसी और के साथ भी कितना बुरा असर होता है. सो हमारे पास शायद और मोटिवेशन होनी चाहिए, हमारे पास और वैलिड रीजन होना चाहिए टू कम आउट ऑफ दैट एंड टू गिव दैट सेफ स्पेस टू अदर्स एटलीस्ट. तो इसके लिए प्लीज कोशिश करने की जरूरत है. खुद से नहीं हो रहा है तो लेट्स आस्क फॉर द हेल्प. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah. I see that Mehtab has the hand up. If we can take the questions at the end of it, you can also put it on the chat for now. But on this point of positivity, I also wanted to mention one thing about the buzzword these days with toxic positivity, right? On one end, there is this toxic positivity, which basically tells you that you need to be positive all the time. Har time haste raho, khush raho, Instagram ready raho, social media ready raho. But that's not the truth of all of our lives. So we need to We all know. understand that that is, it's not how we are meant to be. We just have to learn to manage that. Anything you want to say on that, or if you want to, give us some more tips on how to handle and be more Yeah, we'll work on it. consistent. First thing is, yeah, अनु, जब पॉजिटिविटी की टॉक्सिसिटी की बात की जाती है, पॉजिटिविटी कैन नॉट बी टॉक्सिक. उसमें भी द मेन व्हाट वी आर थिंकिंग इज we are just talking about the fake things in our life, which is not the reality. Life is like a ECG machine. We all know that. Up, down, up, down, up, down. और तभी जिंदगी जीने का मजा भी आता है. उस लाइन को जरा सीधी करिए. हम पुराने जमाने में हिंदी मूवी देखते थे ना, तो किसी के लगा होता था टू, जब होता था, ओ माय गॉड, लाइफ ही खत्म हो गई है. सो लाइफ इज एक्चुअली लाइफ. खुशी का मजा ही नहीं आएगा जब आपने वो नीचे जाके देखा ही नहीं होगा कि हाय दुख क्या बड़ी चीज होती है ना. सो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ. सो पॉजिटिविटी, बिल्डिंग पॉजिटिव एटीट्यूड डज नॉट मीन दैट यू आर इग्नोरिंग योर चैलेंज. नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को शट कर रहे हो. नहीं, यू आर मैनेजिंग दोस, यू आर बीइंग होपफुल. आप सोच के देखिए, व्हेन आई एम अ फौजी ना, आई ऑलवेज टॉक अबाउट ना, मेरे लिए ना कारगिल वॉर वाज अ बिगेस्ट, आप मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको लेसन्स लर्न होंगे. मुझे लगता है फ्रॉम अ ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू आप सोचिए. आई हैड विजिटेड दैट प्लेस. कभी किसी को मौका मिले ना तो प्लीज मस्ट विजिट कारगिल वॉर मेमोरियल ना. इट्स इन द्रास. द्रास में जब आप वहां खड़े होगे, आपको एक तरफ टॉलोलिंग दिखती है, एक तरफ आपको टाइगर हिल दिखती है. देख के ही आपको ऐसा लगता है, ओ माय गॉड, हमें वहां जाना मुश्किल लगता है, लोगों ने वहां पे लड़ाई करके जीती है. अब वो जीतना इज वन थिंग, इट इज जस्ट नॉट द प्लानिंग. देयर मेंटल स्ट्रेंथ, इमेजिन. प्लानिंग थी, सब कुछ था, थिंग, बट सी हाउ पॉजिटिव, जो उनके पास पॉजिटिव साइकोलॉजिकल कैपिटल थी यार. जस्ट इमेजिन इट कि कितने होपफुल थे, कितने कॉन्फिडेंट थे. रिजिलियंस, एक के बाद हारने के बाद, एक के बाद नहीं, वी आर गोइंग टू विन इट. तो मुझे ऐसे लगता है, सोचो जब हम कारगिल जीत जाते हैं तो बच्चों से बात करूंगी, छोटे मोटे एग्जाम्स क्या चीज है. नहीं, थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ा सा सब कुछ, क्यों नहीं जीती जा सकती भाई. बस उम्मीद का दामन जिस दिन छोड़ोगे उस दिन अपने आप हार जाओगे. सो पॉजिटिव की बात करते हैं तो पॉजिटिव में हम बात करते हैं होपफुल होने की, ऑप्टिमिस्टिक होने की,
फोकस सही जगह पे ले जाने की। इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिविटी के ऊपर फोकस नहीं जा रहा है, पर पूरी जान उसके ऊपर नहीं लगा रहे हैं, उसको देख के सब कुछ हाथ पैर छोड़ नहीं देते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है उन चैलेंजेस को देख के सीख के हाउ वी मूव अहेड with becoming more optimistic, by becoming more hopeful, having that energy, because hope, optimism, these are a positive set of energy which gives you energy to work. और काम ही कर्म है, आप समझिए, कर्म सबसे बड़ी चीज है। इफ यू आर नॉट एबल टू वर्क, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बैठे बैठे भगवान भी साथ नहीं देगा, ये समझने की जरूरत है। सो मैं वहां पे आती हूँ। देन कमिंग टू द सेकेंड थिंग इज, इफ यू रियली नीड ना, अगर मुझे ऐसे लगता है द ओनली की टू हैप्पीनेस इज ग्रैटिट्यूड, और कुछ भी नहीं है। आप सोच के देखिए, नहीं, हम में से कितने लोग हैं हमें ये लगता है हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। बट आप हम सबको ये पता है हमारी जिंदगी कितनों के लिए ड्रीम लाइफ है। सोच के देखिए। यू फोकस ऑन कि आपके पास आईफोन 15 प्रो नहीं है या आईफोन नहीं है। अभी ना मैं बहुत रिसेंटली एक एग्जांपल दे रही थी, कितने लोगों को लगता है माय गॉड मेरे पास मर्क नहीं है, बीएमडब्ल्यू नहीं है, ऑडी नहीं है। वहीं पे कुछ लोगों के लिए सपना क्या होगा कि मेरे पास थोड़ी और नीचे आ जाए, चलो यार स्कॉर्पियो ही आ जाए, चलो यार एक्सयूवी आ जाए। कुछ लोगों के लिए सपना आ जाता है, चलो यार छोड़ो ऑल्टो ही ले लेते हैं। कुछ लोगों के लिए वो भी सपना होती होगी, आप सोच के देखिए, ऑल्टो मिलना। कुछ लोगों को लिए लगता होगा आज बाइक मिल जाए, हर रोज साइकिल पे जाता हूँ फैक्ट्री, मजा ही नहीं आता, थोड़ा डिस्टेंस जल्दी कम हो जाएगा। कुछ लोगों के लिए साइकिल भी सपना होगा, और कुछ लोगों के लिए पैर होना भी सपना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। और ये समझने की बात है, ये उस समय समझने की बात है जब हमें रात को नींद आनी बंद हो जाती है कि मुझे ये चाहिए, आई एम मिसिंग ऑन दिस, आई एम मिसिंग ऑन दिस, आई डोंट वांट दिस। एट दैट टाइम प्लीज सी व्हाट ऑल यू हैव। कुछ ना होने के चक्कर में हम अपने आज जो है उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू इट इवन इन आवर रिलेशनशिप। पीपल जो हमारे पास अपने लोग हैं, हमारे अपने माँ बाप, उनको तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। Love is just not loving, this girlfriend love, this infatuation love. Love is more powerful. हर रिश्ते में प्यार है। आप समझिए, जो हमारे पास ऑलरेडी है, देयर आर पीपल, हम उनको इग्नोर कर देते हैं, उनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, फोकस कहीं और चला जाता है। फिर कैसे सुकून होगा लाइफ के अंदर? समझिए। तो जिसको भी आज अपनी लाइफ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ठीक ठाक नहीं लग रही है, द ओनली थिंग आई वांट टू टेल टू ईच वन ऑफ यू, एक रात एम्स जाके आना, दिल्ली के अंदर, पीजीआई चंडीगढ़, कोई सरकारी अस्पताल आपके आसपास में हो, आप गाना गाते हुए वापस आओगे, दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना गम है, दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। एंड लाइफ इज दिस। अपने आप मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी, सुकून हो जाता है लाइफ के अंदर व्हेन यू आर हैप्पी विद व्हाटएवर लिटिल यू हैव। हम एज अ पेरेंट्स, इट हैज बिकम सो चैलेंजिंग। 95 तो 98, 98 नहीं तो 99, 99 पॉइंट समथिंग मार्क्स भी चाहिए। द काइंड ऑफ प्रेशर इज ऑन देयर। मेरा दिल बैठता है व्हेन आई सी कोटा के अंदर पंखों के अंदर स्प्रिंग लगाने पड़ गए हैं। यार वो आईआईटी का कहीं बच्चा कुछ बन जाए। व्हाट वी, और मैं इस जनरेशन की नहीं कमी मान रही हूँ, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हम क्या ऊपर लेके आ रहे हैं। वी नीड मोर रिजिलियंट पीपल टू कम अप। It's very, very important how they are going to handle their crisis in their life, which is very, very important. So learning those things are very important. And humble request to each one of you, कितने लोग हैं हम यहाँ पे? 36 में से हम 3 को माइनस करके, 4 को माइनस करके, रेस्ट ऑल माय बच्चास, प्लीज लिसन टू मी। द ओनली रिक्वेस्ट आई वांट टू डू इज दिस, समझिए प्लीज इसको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट ओवरलोड योरसेल्फ। यहां पे रेस है आज के टाइम में, आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है, आपको ये भी करना है। भाई 24 घंटे ही है, जिंदगी भी है, जिंदगी जीनी भी इंपॉर्टेंट है भाई। ऑल वर्किंग मदर्स, भाई जो लोग, समझिए, 24 घंटे, प्रायोरिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जिनकी प्रायोरिटीज क्लियर, वो जिंदगी में खुश है, मेंटल हेल्थ स्टेबल लेके चलते हैं। पीपल हु आर डूइंग प्रोफेशनली वेल, आप समझिए, they must have compromised on their personal life. There is no doubt in that.
people who are doing very well in their personal life, they must have compromised on their professional life. There is no doubt in that. Nothing is right, nothing is wrong. किसी के ऊपर, we all are different individual. हमारे दिल के अंदर से different चीजें निकलती हैं. You see what your priority is. You see from where you are getting more happiness. You see if it is your professional life, सबके बच्चे पल जाते हैं यार, देन फिर बिल्कुल परफेक्ट पेरेंट बनने की जरूरत नहीं है यार. छोटी मोटी चीजें ऐसे भी चलती है, हर चीज में सीरियस नहीं हुआ जा सकता. कई लोग होंगे वो आर डूइंग वेरी वेल इन देयर पर्सनल लाइफ, हम जैसे भी थोड़ी बहुत यार प्रोफेशन में कर ही रहे हैं, ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो प्रोफेशन भी थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है, बट यू नीड टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट, एंड दैट्स ओके. यू कैनॉट गेट एवरीथिंग. जिंदगी रेत की तरह यार, जितना पकड़ोगे उतनी फिसलती चली जाएगी, जितना जियोगे उतना एंजॉय करते चले जाओगे. सो जिंदगी जीने का नाम है, हर चीज के लिए कि बवाल नहीं मचाया जा सकता. You ask me being a Fauji, देखिए, if I could have, when I left Fauj after 5 years, people were asking me, why you are living this, it's a good job, this. Yes, it was my passion, it was everything, but कब तक? जब तक my son was not born. The moment he was born, all my, the career oriented, that girl always doing this, everything was taken over by my mother instinct. मैं नहीं जस्टिस कर पा रही थी ऑफिस के अंदर जाके, एंड वेयरिंग दैट यूनिफॉर्म, पुटिंग दोस स्टार्स ऑन योर शोल्डर्स, इट इज 24/7 जॉब. एंड बीइंग अ मदर without a family support is a 24/7 job. My husband was a Fauji, being a Fauji बीवी is a 24/7 job. बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, एंड यू नीड टू टेक अ वाइज डिसीजन. हर डिसीजन सही भी नहीं होगा, इट्स ओके, इट्स ओके, एवरीथिंग कैन बी ओके. डिसीजन गलत हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ी और एक्स्ट्रा मेहनत करके ठीक कर लेंगे. आप समझिए उस चीज को, अटक के बैठ मत जाइए. क्या हो गया, हमारा डिसीजन था, हमने लिया, गलत हो गया, इट्स ओके. थोड़ी और एक्स्ट्रा एफर्ट में लगता क्या है, रातों को थोड़ा और जागना, ठीक है, थोड़ा खर्चों को कम कर लेना, थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लेना, एंड इट्स ओके. जब अपना डिसीजन ठीक करोगे तो और सुकून मिलेगा लाइफ के अंदर. सो एवरीबडी इज डिफरेंट. ऐसा नहीं है, देयर आर माय कोर्समेट्स हु आर वर्किंग एंड दे आर डूइंग एज अ पेरेंट आल्सो डूइंग अ वंडरफुल जॉब. दे हैव अ फैमिली सपोर्ट, यू सी. So everything is up to us. You need to decide your priorities clearly in your life. Do not overload yourself, please. Overloading बहुत stress देती है, और especially people who are working in a big MNCs, because stressors multiply होते रहते हैं वहाँ पे. आप समझिए, because आपकी गलती नहीं है. Environment itself is not secure. आप सोचिए, गांव के अंदर लोग हैं, वो ज्यादा सुकून से रहते हैं. आई एम टेलिंग यू, आज मैं अपनी बुआ से मिलके आई हूँ, हाँ, और हमारा तो वो आराम से चला के, बेटा ना, सुबह 2 रोटी खा लेती हूँ, शाम को 2 रोटी खा लेती हूँ, बढ़िया नींद आ जाती है. इमेजिन, that is also good mental health. I'm not telling you don't aim for good things, do that, but if meeting those things आपकी परफॉर्मेंस नीचे लेके आ रहा है, आपके जिंदगी के सुकून को, आपकी मेंटल हेल्थ को, नथिंग इज, हेल्थ से इंपॉर्टेंट कोई बड़ी चीज नहीं है. मार्क माय वर्ड्स. कोई जॉब, कितने ही पैसे आपको वो नहीं दे सकते. अ गुड हेल्थ मीन्स बोथ फिजिकल ऑल्सो एंड मेंटल ऑल्सो कैन गिव यू. एंड इफ देयर इज समथिंग which is taking a toll on your mental health, you immediately need to take it. ज्यादा बुरी होने से पहले take a right decision. डरिए मत डिसीजंस लेने से. आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. गोल्स सब इंसानों के पास होते हैं, everyone has their goals, है ना. और फिर गोल्स को पूरा करने के लिए जो लोग एक्शंस क्या लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. We all need to know that. फाइन. एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट सी हो जाती है. एक सेकेंड. यस, सेल्फ एस्टीम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. जो मैंने स्टार्टिंग से आपको बोला था, बिल्डिंग राइट माइंड सेट. अगर आप मुझसे पावर की बात करो, ऑल पावर लाइज विद इन अस. The way you are going to treat yourself, the way you are going to tell yourself, your life is going to be exactly the same. आप अपने आप को कहना शुरू कीजिए, आप मानना शुरू कीजिए, you don't respect yourself, nobody is going to respect you.
That's the fact. And you are not always going to meet the good people in your life. ऐसा नहीं होगा बच्चों. Life is like, ये चलती रहेगी. You will meet good people, you will meet bad people, you will meet good people. आपको लगेगा वाह, एक भी जिंदगी में मिल जाता है ना, पूरी जिंदगी उनके सहारे निकल जाती है. You are going to meet bad people, at least हमें ये पता होगा कि ये लोग हमें जिंदगी में नहीं चाहिए. You get that kind of experience from them ना, कि at least we don't. People suck your energy. Negativity suck your energy, be it log, people around you, be it negative program, be it negative news. Your brain process exactly the things which you give. Information processing model, the input you are going to give it to your brain, it is going to process the same information. तो अब आप देख लीजिए, Amazon Prime देख देख के, Netflix देख देख के आप कौन सी मतलब information अपने दिमाग को दे रहे हैं. By God, I'm surprised to see the kind of program these people are making. उनको देख के लगता है आज ही दुनिया खत्म हो जाएगी. अरे भाई, आज दुनिया चल रही है ना. क्यों? Because there are good people in this world. अगर हमें मिल नहीं रहे, at least we can try to be that one. तुम्हें ये तो पता चल रहा है बुरे मिलने से कि ऐसा नहीं बनना है यार. So just try. It is just the matter of attitude, where you are focusing on, what you are doing it. ठीक है, बड़े important समझिए. Instagram life is not. मैं अपनी इंस्टा पे फोटो रोते हुए क्यों लगाऊंगी? And what do you think? My life does not have challenges. Yeah, एक साल में तीसरी बार मूव कर रही हूँ, पूरा बड़ा बरकम घर. But I take those challenges. यार करना ही करना, उसको रो के करो या हंस के करो. हम हंस के कर लेते हैं. So matter of attitude. Need not to worry. Challenges are going to be there. और yes, failures होंगे, सबकी लाइफ में होंगे, तकलीफ भी होगी. तकलीफ से नहीं भाग सकते यार. इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन इमोशन. दर्द होता है तो क्या होता है? रोना आता है. जब छोटा बच्चा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, नहीं प्रदीप, जब छोटा बच्चा अपनी मम्मा से पूछना, जब प्रदीप रोता था तो रोता था ना जब भूख लगती थी. सो इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन इमोशन. व्हेन यू डोंट गेट थिंग्स, और जब आप दुखी होते हो, आपको रोना आता है. बट सोसाइटी ने जो कंडीशनिंग कर दी है, बॉयज कांट क्राई, मर्द को दर्द नहीं होता. होता है यार, होता है. क्यों नहीं होता? बराबर का दर्द होता है. And whenever we are going to fail, the failure not in the term of exams, in term of relationships, in term of everything, yeah, it is going to hurt. कई बार तकलीफ कम होती है, कई बार तकलीफ ज्यादा होती है, और कई बार बहुत ज्यादा होती है. प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हम उन फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. And we paint ourselves with that fake smile. When I ask Anu, oh, how are you, Anu? That rata dialogue. Oh, I'm good. I'm good. I'm good. This is the rata door. And if I'm not feeling good, no, I'm not feeling good. Don't paint yourself with that fake smile, please. If you're not feeling good, it's very important. कई बार दिल खोल के रो के देखिएगा, हाय, इतना हल्का दिल हो जाता है. हाँ, इतना आसान था. सो मेन प्रॉब्लम अराइज जब चीजें दिमाग में रहती है ना, तो बवाल मचा देती है. अंदर ही अंदर इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग. हमें सोल्यूशन ही नहीं मिलता प्रॉब्लम का, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास होता है. एंड समटाइम वी जस्ट नीड टू टॉक. तभी जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं, फर्स्ट स्टेप बोलते हैं लेट्स टॉक. लोगों ने बात करना बंद कर दिया है यार. लोगों ने बात करना. क्रिएट दैट सेफ स्पेस फॉर यू. और अगर आपके पास नहीं है, बी दैट सेफ स्पेस फॉर समवन. कि जब तुम्हारे पास कोई आ रहा है कुछ अपना दुख बताने, जितेश, तो उस टाइम सुन लेना बेटा. क्योंकि हिंदुस्तानियों में ना हमारी बड़ी आदत है नसीहतें देने की. कोई अपना मैं कह रहा था ना तुम्हें ऐसे नहीं करना. नो, व्हेन अ पर्सन इज इमोशनल, दे डोंट नीड एनी रैशनल आंसर्स. They just need to be heard. They just need a tight hug. They just need that someone hold their hand. They just need that someone says, yes, yes, that's it. दे के देखो किसी को सहारा, लाइफ अच्छी लगने लग जाएगी. खुद बन के देखो किसी का सहारा. When people trust you, it is so much of power. आपको अंदर से पावर आती है जब लोग आप पे विश्वास करते हैं, आपके पास सेफ फील करते हैं, आपको अपनी दिल की बात सुना देते हैं. ठीक है, बड़ा अच्छा हो जाता है. So it's very important. And in mental health, most of the thing, when things multiply in your mind, write it down on a piece of a paper.
Talk to your friend. If you don't have anybody to share, please call on the helping line. There are so many these days. एक ही मोमेंट होता है जिसमें आप बहुत कमजोर पड़े होते हो, खुद पे विश्वास करके प्लीज एक फोन उठा लिया करो उस टाइम. मत डरो. नीड नॉट टू बी स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग इन योर लाइफ. कुछ नहीं होगा. ना सक्सेस सारी जिंदगी के लिए चलती है, ना फेलियर सारी जिंदगी के लिए चलते हैं. हमेशा याद रखिएगा. ठीक है, कुछ ना कुछ हम जरूर कर लेंगे. अच्छा, तो बात करना सीखिए. लोग बहुत कैलकुलेटिव हो गए. बहुत लोग, स्पेशली कई लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं. हम जैसे एक्सट्रोवर्ट लोगों को ठीक है, फर्क नहीं पड़ता. वी आर वेरी एक्सप्रेसिव. कई बार ना यू विल एक्सप्रेस योरसेल्फ, टक 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 टक. नहीं है, रो लेंगे, ठीक है, डोंट फील. और रोना इज अ नॉर्मल ह्यूमन इमोशन. पीपल थिंक पीपल हु क्राई आर इमोशनली वीक. नो, नो, दे आर इमोशनली स्ट्रांग. दे नो हाउ टू लेट इट आउट. कुछ लोग अपना एंगर रो के निकाल सकते हैं, एंड इट्स ओके. यू सी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन. चलिए, एनीथिंग अनु? I don't know if it is because you're a Fauji, you had the courage to say what most people cannot say, कि nothing is more important than mental and physical health. I think it's not said enough. Yeah. Kitni, आसानी से and so beautifully you said and explained why there is going to be challenges and all of that, but nothing can come at the cost of this. And it will never give you the satisfaction, even if you achieve whatever you're going to. So thank you for sharing that. And I think a couple of key points that I'm taking away from, I think everything that you said was giving me goosebumps almost. I feel like I should listen to this over and over again. But the main things I take away from your talk is gratitude. I think look at what you have rather than what you don't have. All the more it's ringing a bell today for me. Being honest with your emotions. I think today's Instagram and social media world is put a cover on all of that. Be strong, be independent, be happy, be all these fake things. I think being honest should be added there most importantly. And talk and listen. I think that is why Pukar is also here, and we are so closely tied with that effort. Just allowing someone to talk and listening is such a beautiful way to be happy and make someone happy as well. I am just awed by your session today. I think I can just keep listening to you. Thank you so much for this. I think there are some questions that people did have during the session. If anybody wants to unmute and ask or put the questions in the chat, I'm sure Captain Dr. Sunaina is happy to take them. Dolly, I'm not able to see the questions, so if you want to... Anu, I have messaged you. Now can you see, or otherwise I'll ask those questions? Yes, I think I'm able to see them now. Yeah. So Anita says, very practical and relevant talk. Very well said. She's enjoying listening to you. Wonderful. Thank you, Anita. Good to see you. Ma'am, how to focus long time on study? That was one question. And just before you answer that, if I may ask Dolly to please send out the feedback form. So while we are listening to the answers, we can also quickly, it's just a very short form. We can quickly fill that in. And can we take a quick picture if that's okay with everyone? Yeah, please switch on your camera, please. Switch on your videos. Before we will get to the questions, I promise you. If Thank you, quickly Ujwala. take a Good to see picture. you. Any more requesting videos coming everyone on? to come on the camera, please. Yes, there's so many of us here today and such a lovely talk. I think we're all going to have smiling faces. I have no doubt. Great. Thank you so much. I'm gonna give you a switching count. on. Yeah. Okay. Thank you. Okay. So 1, 2, 3, smile. Okay. Thank you. Thank you, And everyone. if you've sent the feedback form already, I think, ma'am, if you're okay to take the question, how do we focus on studying for a long time? Oh, I know many people who want answers to this question. My daughter here as well, I'm sure she also wants. चलिए बेटा, स्टडी फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. अब पढ़ाई तो फोकस आजकल ना सबसे ज्यादा कम क्यों हो गया? वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड इट ना. मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर ऑन इंस्टाग्राम. अब पहले इंस्टाग्राम भाई
1 मिनट की वीडियो देखने की पेशेंस नहीं है, राइट? मोमेंट को टिक 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 30 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड में आरती विल टेक अ डिसीजन कि मुझे ये वीडियो देखनी है या नहीं देखनी है. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, यू नो. तो वहीं से इट इज देयर इन द एनवायरमेंट, वी रियली नीड टू सी इट. फाइन. जब मुझे अपना टाइम याद आता है ना, हमें DD1 DD2 के जमाने के, अगर DD2 भी लगाना होता था तो छत पे जाके एंटीना हिलाना पड़ता था, उसके बाद DD2 आता था, देन वी कुड सी DD2. फाइन. सो पेशेंस अपने आप ही थी, हमारे एनवायरमेंट ने हमें सिखा दी थी. एनवायरमेंट ने सिर्फ पेशेंस नहीं, फोकस भी करना सिखाया था. इट वॉज देयर. अब फोकस हो गया है कम, शॉर्ट, मतलब बहुत शॉर्ट स्पैन के लिए हो गया. तो अब जो चीज कमी है उसको बढ़ाना पड़ेगा. दैट्स एज सिंपल एज दैट. अब फोकस बढ़ेगा कैसे? फर्स्ट थिंग, डिस्ट्रैक्शन से दूर होना पड़ेगा. तो जब आप पढ़ने बैठ रहे हो, यू रियली नीड टू क्रिएट एन एनवायरमेंट विदाउट डिस्ट्रैक्शन. इन आवर टाइम देयर वाज नो डिस्ट्रैक्शन. मोबाइल बजता ही नहीं था, नोटिफिकेशन दिखती ही नहीं थी, तो जिस टाइम बैठे हैं उतनी देर हम करके उठ जाते थे. बट इन योर टाइम इट इज देयर. सो हम्बल रिक्वेस्ट, बच्चों, दिल के ऊपर थोड़ा काबू रखिए. करिए उस फोन को स्विच ऑफ. अगर आपने 1 घंटा 2 घंटा अपना स्टडी टाइम बनाया है, प्लीज उसको उस तरह के दे दीजिए. बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका लॉन्ग टर्म के अंदर लॉन्ग नहीं बनता, इवन फॉर अ 45 सेकेंड. सो देयर इज अ पोमोडोर टेक्निक विच वी से इट. ठीक है. सो हाउ डू दे डू इट? 20 मिनट्स स्टडी, 20 मिनट्स सेट एन अलार्म, प्रॉपर अलार्म. ठीक है. एंड नॉट ऑन अ मोबाइल. मोबाइल पे और 50 चीजें देखने लग जाओगे आप 5 मिनट के बाद. व्हाट्सएप स्टेटस देख देख के निकल जाता है तुम्हारा टाइम, आधा घंटा. ठीक है ना. डू नॉट डू दैट. सो 20 मिनट्स, पुट इन अ प्रॉपर अलार्म. अलार्म वाला अलार्म खरीदो. मैंने अपने बेटे के लिए अलार्म लगा के दिया है, बिकॉज मोबाइल डजंट वर्क. मोबाइल डिस्ट्रैक्ट यू मोर. अलार्म लगाइए 20 मिनट्स के लिए. स्टार्ट विद समथिंग. और जब भी पढ़ना स्टार्ट करते हो आरती, व्हेन यू हैव टू स्टार्ट योर मोमेंटम, डू नॉट स्टार्ट विद द टफेस्ट सब्जेक्ट यू वांट टू डू इट. स्टार्ट विद द थिंग व्हिच यू लाइक स्टडिंग. ठीक है. वहां से आपका मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा. Do it for 20 minutes and see after that 20 minutes के बाद, do you want to continue for next 5 minutes? Do you want to complete that? If you have energy to do that, please do that. नहीं है, उसको करो. Take 5 minutes break. And 5 minute break does not mean mobile. 5 minute break does not mean TV. उसमें तो आपका दिमाग फिर चलेगा. So again, when it comes to mental health, when it comes to focus, when it comes to giving breather to your brain, where the role of breathing and meditation comes into the play. आज के टाइम में बच्चों को लगता है हम क्यों करें मेडिटेशन? मेडिटेशन तो बुजुर्ग लोग करेंगे. बेटा, बुजुर्ग लोगों को जरूरत कम है. उन्होंने तो फिर अपना टाइम ठीक ठाक से निकाल के बुजुर्ग हो गए हैं. सबसे ज्यादा आपके दिमाग को जरूरत है, जिसको आप सुबह से लेके शाम तक टंग 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 नॉन स्टॉप चलाते रहते हो मशीनरी की तरह. उसका ब्रेकडाउन आएगा, तो उसको आप कैसे देंगे? यू रियली, एंड ब्रीदिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंजाइटी, सोचिए आपको जब डर लगता है, सबसे पहले क्या होती है? आपकी सांसें छोटी होती है. यू नो मैम, सांसें छोटी होती है. एट द मोमेंट आप पहुंचिए गोवा और श्रीनगर, वाओ, सो दैट्स द पावर ऑफ ब्रीदिंग. आप समझिए. तो उस टाइम में फोकस ऑन योर ब्रीदिंग. सांसों के लिए जिंदगी चल रही है. सो व्हेन यू विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रीदिंग, और सोचिए एकदम फोकस नहीं होता है, इट इज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम. तो जब भी 5 मिनट का ब्रेक है, सिंपल 3 की सांस पे सांसें अंदर ली, सांस अंदर ले रहे हो, पेट बाहर आना चाहिए. बच्चे उल्टी ब्रीदिंग भी करते हैं आज के टाइम में एंजाइटी में. मुझे पता नहीं है कौन सा गुब्बारा है जिसमें हवा भरने से वो पिचक जाता है. तो आपका पेट कैसे पिचक सकता है भाई? तो जब आप सांस ले रहे हो तो लेट योर टमी कम. तो ब्रीद इन लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड, ब्रीद इन लॉट्स ऑफ लव इनसाइड, ब्रीद इन लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इनसाइड. उस टाइम में बैठिए, होल्ड इट फॉर अनदर 3 to 4 सेकेंड, जितनी देर होल्ड कर सकते हो. एंड देन ब्रीद आउट ऑल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑल नेगेटिविटी, ऑल हेट, व्हाटएवर यू हैव. ब्रीद आउट एंड फील, देन सी इट. डू इट फॉर 2 minutes. आप देखिए, इट हैज पावर. आप पुराने ऋषि मुनियों को देखिए, कितनी ज्यादा करके उनकी जिंदगी कितनी लंबी होती थी. ब्रीदिंग हैज अ पावर ऑन योर लाइफ ऑल्सो. आप देख के देखिए. तो कोशिश कीजिए, दिमाग इधर उधर जाएगा, जाने दीजिए. अगेन लेट द फोकस कम टू योर ब्रीदिंग. तभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. मैं किसी को बोलती हूँ यू स्टार्ट डूइंग इट, मैम हमारा ध्यान नहीं लगता. बेटा, इसीलिए तो जरूरी है मेडिटेशन करना और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना. That is why you are doing it. So start doing it. It is going to help in your focus in studies also. Chaliye. Thank you for taking that
question. We have very little time, but we have a couple of more questions. If we can maybe do one more and then wrap up the session. And if, ma'am, you're available for maybe a couple of minutes, you can take the next two questions as well. I'll take it. So the next one is from Mehtab Singh Yadav. He says, when I'm happy, I take more time to do some particular work. But when I'm sad, I complete my work within time. Well, that's a very interesting question. Yeah. So, मेहताब, this is what, हाँ, तो ये मेहताब को लगता है, ठीक है? देखिए बच्चा, दो चीज होती है. These are the two extremes of the things, ठीक है? पर दोनों इमोशंस के पार्ट है, ठीक है ना? Either you are too sad or you are too happy, ठीक है? When you are too happy, you are overwhelmed with your feelings, ठीक है? आपकी कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही है, यू आर मोर वरीड अबाउट द थिंग्स. एंड व्हेन यू आर सैड, आपके पास कोई इधर उधर देखने को चीज नहीं बचती होगी, जहां तक मुझे लगता है ना. सो यू जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ एट दैट टाइम एंड योर फोकस गोज ऑन दैट. दोनों चीजें ठीक नहीं है. मुझे ऐसा लगता है व्हेन यू आर इमोशनल, आप रैशनल थिंकिंग के अंदर नहीं होते हो. एंड द ओनली थिंग, एक और पॉइंट मुझे ऐड करने की बहुत जरूरत है यहाँ पे, इज अबाउट ओवर थिंकिंग. मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स अराइजेस बिकॉज ऑफ दिस वन थिंग. ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है. 90% ऑफ जो एक्चुअल में लाइफ में वो चीजें होती नहीं है जो सिर्फ हमारे दिमाग में जगह कर रखी होती है, एंड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज ओवर थिंकिंग हैज बिकम, मुझे ऐसा लगता है, एंड वेन एवर वी ओवर थिंक अबाउट नेगेटिव थिंग्स ओनली. एम आई राइट? ईदर द रिग्रेट्स ऑफ द पास्ट, हाय ये हमसे नहीं हुआ, हाय हमसे क्यों नहीं हुआ, और द एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर, और जिसकी वजह से हमारा खत्म क्या हो रहा है, प्रेजेंट, which is very much in our hand. तो या तो हम पास्ट का कर रहे हैं, अब इसका करना कैसे है. तो मैं तभी बोलती हूँ, इट्स वेरी पावरफुल. हमारे पास ना एक पैशन जरूर होना चाहिए, एक हॉबी जरूर होनी चाहिए. और पैशन कौन सी चीज होती है? प्लीज, यू ऑल आर यंग, जो बच्चे हैं, मेहताब, इवन यू यंग स्टूडेंट्स, फाइंड दैट वन पैशन जिसमें आपको ना घड़ी नहीं देखनी पड़ती. फॉर मी लाइक दिस, जब मैं टीचिंग को पैशन बोलती हूँ, मेरा सेशन कितना ही लंबा चल जाए, व्हेन आई एम विद माय स्टूडेंट्स, आई नेवर लुक एट वॉच. तो टाइम, आप कभी पेंटर को देखिए, किसी डांस वाले को देखिए, हु आर सो पैशनेट अबाउट देयर वर्क, दे डोंट लुक एट वॉच. उस टाइम उनका पूरा फोकस किस चीज में होता है? प्रेजेंट. व्हेनेवर यू आर डांसिंग, व्हेनेवर यू आर रनिंग, व्हेन यू आर प्लेइंग टूर्नामेंट, व्हेनेवर यू आर बेकिंग, व्हेनेवर यू आर सिंगिंग, जो भी आपका पैशन हो सकता है, कोई भी आपकी हॉबी हो सकती है, व्हेन यू आर इनटू इट, तब आप कुछ नहीं सोचते हो, ना पीछे की याद आती है, ना आगे की याद आती है. आपको सिर्फ उस प्रेजेंट पे फोकस होता है. तो जब इवन जब पढ़ने बैठते हो, कुछ भी करने पड़ते हो लाइफ में, जब नींद आनी खत्म हो जाती है बाहर इधर, एट दैट टाइम प्लीज सी, इसको हम बोलते हैं कोपिंग स्किल, ठीक है? आपकी कोपिंग स्किल क्या है? वो कौन सी चीज है जिसमें आप इधर उधर नहीं सोच सकते हो? मैं एक अपनी और बताऊं, आई लव क्लीनिंग माई हाउस. तो कुछ होना जब दिमाग में 50 चीजें घर कर लेती है, आई स्टार्ट क्लीनिंग माई हाउस. अलमारियां सॉर्ट आउट कर दो, वॉशरूम क्लीन कर दो, पूरा हार्पिक डाल, ये कर, किचन क्लीन, मसल क्लीनर सब कर, और उसके बाद दिमाग उसमें लग जाता है, पूरी की पूरी एनर्जी लग जाती है, और बाद में रिजल्ट इमीडिएट दिखता है क्लीनिंग का. योर हाउस इज पिक क्लीन, देन यू फील सो गुड अबाउट इट ना. तो मेरे को वो देख के बड़ा अच्छा लगता है. सो यू फाइंड एनी वन ऑफ योर ओन कोपिंग. ये बड़ी बेसिक सी चीज है, बट वो चीज जब आपको कहीं और नहीं, यू आर जस्ट फोकसिंग. इफ यू लव कुकिंग, इट कैन बी वन ऑफ दैट. इफ यू लव बेकिंग, singing, dancing, listening music, it can be anything, please. Fine. So find that. That is, I'm sure, going to help you a lot. For you, Mehtab, सैड रहना जरूरी नहीं है. मेहताब, नॉर्मल रह के भी पढ़ाई अच्छी होती है ना बेटा. तो अब जरूरी नहीं है पढ़ाई अच्छी करने के लिए तुझे हर बार सैड होने की जरूरत है, ठीक है? एक्साइटमेंट, आई डू अंडरस्टैंड दैट, बट ट्राई टू मैनेज योर फोकस व्हेन यू आर न्यूट्रल आल्सो. ठीक हो यार, लाइफ के अंदर खुश होके भी किया जा सकता है. ओके? Thank you. Thank you so much. We are at 5:03. I want to close the session, but there is one more question after that. I want to thank you from the bottom of my heart. I think you have a gift. I think just the way you speak, the way you are is already, so positive and so energizing. I'm not even kidding. I have goosebumps listening to you. It's such a pleasure, such an honor that you spent this time with us. I'm so grateful and thankful for that. Thank you so much. I'm sure each one of us here feels the same way. Really, things that we know already, but the way you have put it across, I think it's really hitting the nail on the head. So really appreciate your time. Thank you so much.
Thank you. That's Um, it. and There's one more question. there is one more. I just want to let everybody know there's one more question. But we would always like to end on time, so we'll keep this as the last one. If you want to reach out to her or to Pukar, Pukar's details are in the chat. You can always reach out, and please do fill out the feedback form as well. Thank you all. Thank you all as well for attending today. So the last question is how to get motivated to restart after a failure. Resilience. Yeah. It's very, very important. Sabse pehle, after a failure, how? First thing is accept it. Accept your feelings, which I told you earlier. Without accepting your feelings, you won't be able to move ahead. हमेशा याद रखिएगा. It's very, very important. Accepting the way you feel, let it out. Once it is out, now keep all your feelings at one side. Now come to the second step. Very important. हम बोलते हैं take the stock of your failure. Learn one thing from that and adapt. Stock, learn, adapt. Stock taking means now sit back. What went wrong? Was everything out of my control? What were the things which I could have done to give a better result? Think over it. देखिए, टेक द स्टॉक ऑफ ऑल योर फेलियर्स. कौन सी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल थी, कौन सी मेरे अंदर थी, किस चीज पे मैं और मेहनत कर सकता हूँ, कहाँ मैंने गड़बड़ करी, क्या मैंने किया. नाउ लर्न वन थिंग फ्रॉम दैट. बहुत जरूरी है सीखना. एक चीज सीखिए एंड मेक श्योर नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट अगेन, आप तीसरी बार जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, मेक श्योर आप वो वाली गलती रिपीट नहीं करेंगे. नई गलती करने का स्टिल आपको इजाजत दी, but do not repeat the same mistake again, because if you are going to make the same mistake again and again, फिर तो वो स्पाइरल बन जाएगा और उस स्पाइरल से फिर हम बाहर नहीं आ पाएंगे. ठीक है, दूसरी बार नई गलती हो जाएगी, कोई बात नहीं, उस बार वो सीखेंगे, फिर करेंगे. थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 10,000 अटेम्प्ट्स लिए थे. 9,000 अटेम्प्ट्स के बाद जब उससे पूछा गया कि आप थके नहीं, कहते नहीं, मुझे 9,000 तरीके पता थे कि जिससे बल्ब नहीं जलेगा, तो अब तो कुछ ही 30 बजे थे. यू आर सो नियर टू. एंड हमेशा सोचिए, कोई फेलियर ऐसा नहीं है जो कुछ नहीं सिखा के जाता. एवरी फेलियर इज गोइंग टू टीच यू सो मेनी थिंग्स. मैं सच बोल रही हूँ. सबसे बड़ी चीज गुरूर नहीं सिखाता, जो विनिंग सिखाती है ऑल द टाइम. सबसे बड़ी चीज आपको ग्राउंड के साथ रखता है. फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलती है वो काम करने की, चाहे वो किसी भी पेपर में हो. आप किसी कोचिंग सेंटर पे चले जाइए, बट जब आप खुद 3 घंटे बैठ के वो पेपर लिख के सीखेंगे, वहां से जो सीख के आएंगे, दैट इज डिफरेंट ऑल टुगेदर. और अगर आपने दिल लगा के शिद्दत से उस एग्जाम के लिए, उस किसी भी चीज के लिए तैयारी की है, आई एम श्योर कोई ना कोई लर्निंग जरूर होगी उससे. ठीक है, सो डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, अदरवाइज तो लूप बन जाएगा. ठीक है, और लास्ट, ओन योर गोल्स. ओन योर गोल्स मीन्स, हमारा ना हिंदुस्तान के अंदर ये ट्रैप है. छोटा सा बच्चा 4 या 5 साल का होता है, उसको क्या पूछा जाता है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम. जैसे ही बच्चे ने बोला इंजीनियर, डॉक्टर, पेरेंट्स ने, एंड साइकोलॉजी में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट गिवन टू द बिहेवियर, बच्चे को यही लगता है, ओ माय गॉड, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इट. और पूरी जिंदगी वो इसी में निकाल देते हैं. आई एम नॉट सेइंग दोस गोल्स आर रॉन्ग, बट बच्चा कभी खुद से सोचता ही नहीं है, आपको ये पता ही नहीं है. मोस्ट ऑफ द किड्स दे वांट टू बिकम अ फौजी फॉर, बिकॉज उन्होंने अभी क्या देख ली, शेरशाह देख ली, फाइटर देख ली. भाई, इट इज नॉट वेयरिंग एविएटर्स एंड डूइंग. योर पैशन, योर गोल शुड कम फ्रॉम द स्किल यू हैव, the talent you have, the passion you have, then only you will have a perseverance to complete it. बच्चों, माँ बाप के गोल सपने थोड़े दिनों तक ही पूरे हो सकते हैं, उनके लिए perseverance नहीं बचती है. Most of the time you run your life, आपकी जिंदगी किससे चलती है, either to fulfill the dreams of others or to run away from their criticism. वरना दुनिया क्या कहेगी, दुनिया ने तो कुछ ना कुछ कहना ही है. You can't make this world happy. You have to be happy yourself, then automatically the world will around you will be happy. Need not to worry on that. Fine. तो ये करने से I think this is going to help you all a lot. And at the end, keep smiling and all is well. Fine. तो स्माइल बहुत खूबसूरत चीज है बच्चों, ज्यादा नहीं कुछ लगता है. और जिन लोगों के पास नहीं है उनको जरूर अपनी दे दिया करो, लाइफ आसान लगने लग जाएगी थोड़ी सी. ठीक है, चलिए फिर. थैंक यू सो मच अनु. Thank you so much. Ujjwala and Dolly, thank you to each one of you. I had such a good time. मजा आया. Thank you so much, Sunaina, for being here with us today. बहुत अच्छा लगा सुन के. My pleasure. All together. Thank you so much, Thank you. Sunaina, for taking out the time.
My Just pleasure. wanna check with everyone, anyone who has the last thing to say to Sunaina after such a Anu said so much, but I still feel like thanking you even more. Had a wonderful session and the insight you brought in the simplest way possible, I think. You know, when we say things, we discuss things, we use very big words and big things. But I think this was very simple, plain, and I think everyone here could relate to that. Because we have people from different backgrounds here. When we go to Absolutely. webinars, it's an open webinar. So people from different field comes. So I think we should be able to connect, or I think normal चीजें पता सबको ही है. बट Right. फिर भी हम वो थोड़ा कर नहीं पाते हैं, वो स्पार्क मिसिंग हो जाता है. तो ये कांस्टेंट रिमाइंडर्स आर रिक्वायर्ड हम सबके लिए ना, कि Right. जिनसे हम थोड़े दिन पंप खाते हैं और फिर ठीक ठाक चलते हैं. चलिए चलिए, थैंक यू सो मच टू Thank you, ईच वन. Thank everyone. you. Thank you बाय so बाय, much. टेक केयर. Bye. थैंक यू, बाय Thank you. ma'am. बाय Jai बाय, Hind. टेक केयर, यू आर वेलकम, स्टे हैप्पी. Thank you, ma'am. Jai Hind. यू आर वेलकम. जय हिंद बेटा, जय हिंद. Thank you. Thank you. बाय बाय. Thank you, Ma'am. ma'am. Bye Ashima, how are you? All good? Yes, ma'am. Smile bigger What about दिख you, रही है. ma'am? हाँ